Okay, so hello, and now we are going to move on with the type 5 of permutations of like things. I mean, permutations of like things. Like things यानी अपने को जो पसंद है वो like नहीं. Like things यानी वो चीज जो कि एक जैसी है. Why is it not working? Let me check it out. Okay. So now we are going to study about permutations of those things which are similar. As in, let me tell you one example, and I'll try to explain you, and you'll try to understand what I want to say is. देखो मेरे को ये बोलना है okay, हाँ मेरे को ये बोलना है कि what if I have to arrange the letter word I mean I would rather say हाँ the name Lee. मेरे को ये नाम के लेटर्स को अरेंज करना है LEE ली. नाउ द वेरी फर्स्ट अरेंजमेंट इज दैट, पहला अरेंजमेंट तो ऐसा है, ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया, वेरी बेसिक अरेंजमेंट. नाउ द सेकंड अरेंजमेंट इज दैट आई विल प्लेस वन ई ओवर हियर, सेकंड ई ओवर हियर, देन एल ओवर हियर. एल ये प्रोनाउंस भी एल ही होता है. Okay, now next is let me just do it real slow, okay, so that you will understand what concept is about. Let me take one E, then in middle L, then E. And now apart from these three, there is no other combination that you can do. Like this was the very basic, then came I switched down this E and this L. Then what I did was कि मैंने ये और ये दोनों का position swap किया. Swapping of positions has been taking place now. और उससे I got these three different arrangements. Now the concept over here is that sometimes you might come across a things which have too many similar things. जैसे कि यहाँ पे similar thing था E, and now these two E's makes you possible to to permute things in only just three different ways. अब ये थ्री डिफरेंट वेज में ही क्यों हुआ? एज इन हमारा बेसिक मेथड क्या होता है? व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ थ्री ब्लैंक्स, एंड व्हाट वी डू इज okay, well, there are three letters, so three ways goes here. Then there are two letters, then two goes here. Then there is one letter that goes here. Exactly, this is how we solve. This is how we have been solving the permutation all the way along. Exactly, and that is what the main problem is, that when the things repeat, जब प्रॉब्लम कब अराइज हुई? देखो रियलिटी में वी हैव ओनली थ्री परम्यूटेशंस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. But when we approach through our method, we get the answer which is equal to 6, which is not the case. Okay, so in order to nullify, no, we are अपन ये मेथड से जाएंगे हमेशा. We don't know ना कि ये मेथड कब यूज करना है, ये वाली और ये वाली मेथड कब यूज करना है, तो वी आर गोइंग विद दिस मेथड ओनली ऑलवेज. बट द थिंग इज वी डोंट वांट द आंसर एज 6 बिकॉज इट्स ऑब्वियस दैट कि यहाँ पे ये दो ई आ चुके हैं. Okay, so since I know the answer is 3, मेरे को यहाँ पे पता है answer is 3, तो what I will do is let me just erase this 6. What I will do is I will divide this entire thing by 2. Now by dividing it by 2, what I will get is this gets cancelled, this 3 into 1 will remain 3, and so I get the answer 3, which is the required answer. अब फोकस करने वाली बात ये है, now we are again drawing up the formula. We are again drawing up this formula over here, n factorial divided by p factorial into q factorial. Now what does this means? Okay, ये क्यों नहीं इरेज हो रहा है? हाँ, हो गया. Now what does this tell us over here is that we are trying to divide some things which are repeating itself. मतलब क्या, देखो यहाँ पे दो ई रिपीट हो रहे थे, एक दूसरे को नहीं, दो ई रिपीट हो रहे थे यहाँ पे, है ना. और ये दो ई बेसिकली, अब अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अब अपने को ये भूल जाना है. अब अपने पास में सिर्फ ये लेटर है, ये वर्ड है ली, इसमें ई 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये ई की रिपीटेशन की वजह से इन दोनों का परम्यूटेशन, ये दो ई का परम्यूटेशन इज मीनिंगलेस. आई मीन तुम बता सकते हो क्या कि यहाँ पे कौन सा ई आया? जैसे यहाँ पे अगर मैंने ई सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ई सिलेक्ट होगा, ये कैसे तुम बताओगे? Exactly, you cannot distinguish in between these two e's. ये दो e's में तुम distinguish नहीं कर सकते हो.
कि कौन सा ई पहला था, कौन सा ई दूसरा था, कौन सा ई दूसरा था, कौन सा ई पहला था. एंड दैट इज वाई द प्रॉब्लम इज दैट वाइल कंसिडरिंग द परम्यूटेशन ऑफ लाइक थिंग्स you will get the answer 6 over here, but that is not the answer. The reality is that the permutation for these like things does not affect anything. I mean, तुम्हारे पास में 2 ब्लैक पेन है, you keep it in any way you want. I mean, तुम पहले ब्लैक कोई किसी को भी रखो, it won't affect the permutation. What will affect is that कि तुम्हारे पास में different things है, and that leads to different permutation. That will affect. Over here ये 2 ई है, ये 2 ई से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. वो 2 कौन सा, उसमें से कौन सा ई पहले आ रहा है, दैट इज नॉट माई कंसर्न. वॉट माई कंसर्न इज दैट इट इज कमिंग, दैट्स इट, दैट्स वॉट आई वॉन्ट. दैट दोनों में से कोई भी एक ई आ गया, देन आई एम डन, देन आई एम प्रैक्टिकली डन विद द परम्यूटेशन. एंड दैट इज वाई जब भी कभी रिपीटेशन होता है, सेम थिंग का रिपीटेशन हो रहा है, कोई लेटर बोलो या कोई नंबर बोलो, तो जितने बार भी वो रिपीट होता है उससे वी डिवाइड इट, we divided by that particular number. और उसका फैक्टोरियल लेते हैं अपन बेसिकली, बिकॉज 3 into 2 into 1 is nothing but 3 factorial, and thus 3 factorial divided by 2 factorial will give you the answer 3. 3 factorial divided by 2 factorial will give you the answer 3. Because 3 factorial क्यों लिया, क्योंकि the possible permutation for ली ये वर्ड्स लेटर 3 लेटर is 3 factorial. But since these 2 e are repeating itself, I have to divide it by their factorial, the number of times they are repeating, and उसका factorial. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि the meaningless permutation is going to be taken away. I mean, e और e का permutation कैसे करेगा कोई, 2 सिमिलर e का permutation कोई कर कैसे सकता है. There is no way of permuting those things. These 2 को permutation में लाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में. So why don't we just get rid of that particular permutation by dividing it? And that is what the formula tells us over here, that n factorial divided by p factorial into q factorial. If it's not visible for you guys, let me just erase it and zoom it out. That is how much I can go. Okay, so let me, okay, maximum is coming between. Okay, n factorial divided by p factorial into q. Now what p factorial and q factorial is, let's just take another word. इसमें कोई 2 नहीं, इसमें भी 2 ए ही हो रहे हैं. what is the word in which एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 चीजें रिपीट हो रही है एट अ टाइम, यू नो. एग्जैक्टली द वर्ड लेटर. Exactly. Okay. Let's say I have a word letter and I need to permute it. How many possible permutations are there of the word letter? The very basic thing is that, okay, how many like letters are there in this word letter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. So there are 6 letters which are to be permuted. And now there are 6 letters, so let me just write it down. For first position there are 6 letters, second के लिए 5, third के लिए 4, 4 के लिए 3, 5 के लिए 2 और 6 के लिए 1. मतलब 6वें पोजीशन के पास में सिर्फ 1 ही लेटर बचेगा. ओके, नाउ बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे 2 T और 2 E रिपीट हो रहे हैं. So that will be the useless combination, useless permutation among themselves. I mean, T और T में कौन पहला आ रहा है? Who knows? और E और E में कौन पहला आ रहा है? Who knows? And that is what P and Q factorial tells us about. That you have to divide this entire thing by 2 factorial into 2 factorial. Why 2 factorial into 2 factorial? क्योंकि E 2 बार रिपीट हुआ and T 2 बार रिपीट हुआ. So 2 factorial for E and 2 factorial for T. And that is where you get the answer. I mean, you will get cancel these 2 with these 2, and 2 factorial is nothing but 2, so you will get it out with 3, and there you go. 3 into 3, 9, you know, whatever the answer is. We are not getting into the answer. But the concept of permutation of like things is that whenever the things repeat itself, the permutation for that particular repetition is meaningless. Okay, the things which are repeated. So in order to get rid of those things, in order to eliminate those useless permutations,
we divide it by the number of factorial of their of their repetitions, or I would rather say कि जितने बार वो repeat हुए उसका factorial लो, that's it. That is how simple it is. So now ये भी एक बहुत ही अच्छा example बन गया है. You have to permute the letter, so we'll just write down this example properly, so that you can keep it with yourself. Just write down in your registers that example number 1 for permutations of like things के लिए. Example number 1, you have to arrange the word letter. So what the arrangements will be? So yeah, there are 7 letters, so I will draw the 7 blanks. 1 2 3 4 5 6 letters, and so I'll draw 6 blanks, and since each is going to be filled with first position is going to get filled, it's not going to fill with all the letters. The first position will be filled, but for filling that first position I have 6 letters for me, तो उसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ. Then for the next I will have 5 with me. Next में मेरे पास में 4 बचेंगे फिर, and so I get on reducing the amount so that I get to my final answer. But the thing is that since in this particular thing the letters are repeating itself, and since the permutation of repetitions is useless, so that is why we divide by the things which are repeating itself and by the factorial of that particular number. So basically e 2 बार repeat हो रहा है, so we are going to take 2 factorial into t भी 2 बार repeat हो रहा है तो उसका 2 factorial, and whatever the answer is the number of permutation of the word letter. Okay, so let's just go on, do some more examples related to this. Okay, so the very first example, okay, so you have to always remember one thing, that whenever there is a repetition of some letters or numbers in a permutation, you have to divide it. Okay, so now let's just move on with the example part. Okay, so how many different words can be formed with the अच्छा नहीं, sorry ये letter नहीं है. Okay I shouted out really loud, sorry. How many different words, okay, why is it happening? Okay, how many different words can be formed with the letter word Bharat? Okay, भारत ये शब्द दिया है अपने को, और इसके कितने possible different arrangements होंगे. So it's simple now, मैं यहीं पे कर सकता हूँ इसको. Since again it's really simple. Let me just do it in this way. Okay, so since how many letters are there in word Bharat? 1, B, then H, then A, then R, then A, then T. Okay, pretty simple. वापस कितने थे? 6 थे. अब सेम केस हो गया यहाँ पे, जैसे ये लेटर को लेके था वैसे भारत को लेके, लेकिन द थिंग इज दैट पहले पोजीशन पे 6 में से कोई एक आएगा, दूसरे इसमें 5 में से कोई एक आएगा, दूसरे इसमें 5 में से कोई एक आएगा, तीसरे इसमें 4 में से कोई एक आएगा. ओके, चार में से कोई एक आएगा, फिर बाद में 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. एक क्यों नहीं आ रहा है? 1. And that is how the Bharat permutations can be done. But as soon as I saw the word Bharat, मेरे को रियलाइज हुआ कि भैया यहाँ पे A और A तो 2 बार रिपीट हो रहा है. So it's not okay. I'll have to divide entirely by 2 factorial. क्यों? क्योंकि यहाँ पे A 2 बार रिपीट हो रहा है, and since A 2 बार रिपीट हो रहा है, I'll have to divide it by 2 factorial, and that is what my answer is. So now I'll have to calculate it. This 2 factorial is nothing but this 2 into 1, so they get completely cancelled out. So 6 into 5 into 4 into 3, 360 ways, and that is my answer. 360 ways are there. Now let's just move on with the second. अब restrictions भी आ गए थोड़े बहुत इसमें. अब उन्होंने बोला है कि the starting should be with B. Let's say 1 2 3 4 5 6. Starting is with B and ending is with T. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई. फिर कितने लेटर्स बचे? लेटर्स कितने बचे? अब 6 तो लेटर्स थे सर, उसमें से भी 6 लेटर्स में से भी 2 तो फिक्स हो चुके हैं. बचे कितने? 6 में से, ये 6 में से
2 तो फिक्स हो चुके हैं, बचे कितने 1 2 3 4। सो ये पोजीशन पे आने के 4 तरीके हैं, ये पोजीशन पे आने के फिर 3 तरीके हैं, ये पोजीशन पे आने के 2 तरीके हैं, और ये पोजीशन पे आने के सिर्फ और सिर्फ 1 तरीका है। और यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे टी का तो एक ही तरीका रहेगा, बी का 1 और टी का एक ही वेज रहेगा, यू नो, उनकी खुद की परम्यूटेशन। बट इसमें से कहीं ना कहीं पे 2 ए आने वाले हैं, है ना, और उनकी परम्यूटेशन यूजलेस है, सो वी शुड रिमूव दैट। So what we will do is divide by 2 factorial. So ultimately what we are doing is अपन सिर्फ इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 factorial divided by 2 factorial, है ना, 4 factorial divided by these 2 and these 2 gets cancelled out, so my answer is 12 ways. 12 ways. Okay. अब मेरे पास में जगह है 12 ways. That is how you do. यहाँ पे ये 360 था तो ये 180 आ जाएगा यहाँ का आंसर। इफ इन केस यू आर वंडरिंग दिस आंसर देन या नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम्स, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स, एंड दैट पार्ट इज दैट तीसरा वाला, बी एंड एच नेवर कम टुगेदर। आई लाइक दिस पार्ट, यू नो, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब तुम जैसे होशियार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बट ठीक है, होता है काफी लोगों के लिए। खैर ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन विथ इट देन। ओके, सो बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, हाउ आर वी गोइंग टू डू नाउ? एक बात तो मेरे को पता है कि टोटल वेज आर 360, एग्जैक्टली टोटल वेज आर 360, और मेरे को ये भी पता है दैट कि अगर B पहले आ गया तो ठीक उसके बाद में A नहीं आ सकता, ओके, और अगर H आ गया तो उसके ठीक बाद में B नहीं आ सकता। सो आइदर केस, इसका मतलब B और H में खुद में कितनी परम्यूटेशन हो गई? 2 फैक्टोरियल की परम्यूटेशन हो गई। सो द परम्यूटेशन फॉर B एंड H टुगेदर की कंसिडर कर लेंगे फिर अपन, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ बी एंड एच नेवर कम टुगेदर में अपन ने क्या बोला? पहले तो टुगेदर कंसिडर कर लेते। लेट्स से बी एंड एच आर टुगेदर, बी एंड एच आर टुगेदर। सो नाउ कंसिडरिंग दिस बी एच टुगेदर, मेरे पास में 6 में से अब बचे कितने प्लेसेस? 5 प्लेसेस। और कितने वर्ड बचे? अब 6 थे ओरिजिनली, तो मेरे पास में ये 6 थे, लेकिन सिंस बी एंड एच आर टुगेदर तो अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एंड आई हैव एग्जैक्टली 5 प्लेस लेफ्ट, and I have exactly 5 place left for the permutation, and that is why whatever the permutation is going to be 5 factorial. But since A repeat हो रहा है यहाँ पे, I am going to divide it by 2 factorial, and since मैं क्या कर रहा हूं, ये टुगेदर की परम्यूटेशन निकाल रहा हूं मैं, मेरे को टोटल परम्यूटेशन तो 360 पता ही है, ओके ना, ये भूल मत जाना। टोटल परम्यूटेशन माइनस टुगेदर परम्यूटेशन विल गिव मी नेवर टुगेदर। सो कंसिडरिंग इट बी एंड एच आर टुगेदर, मेरे पास में है 5 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 2 फैक्टोरियल कहां से आया बेटा? भाई अगर सर पहले अगर एच आ गया तो बाद में कहीं ना कहीं बी आएगा, और अगर पहले बी आ गया तो बाद में एक पोजीशन छोड़ के कहीं ना कहीं एच आएगा। सो वैसा वर्सा हो रहा है, कहीं बी आएगा तो एच आएगा, या तो एच आएगा तो कहीं बी आएगा। सो उनकी 2 परम्यूटेशन वो यहां पे रही। सो आई वुड रादर राइट इट इन दिस फॉर्मेट। ये 2 फैक्टोरियल किसकी परम्यूटेशन हो गई है? बी और एच की। और ये डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल किसकी पोजीशन हो गई है? किसकी फैक्टोरियल है ये? ए की, जो रिपीट कर रहे हैं, एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, सो दैट इज व्हाई आई एम लेफ्ट विद 120 वेज। नाउ 120 वेज जो है, ये 120 वेज मेरे टुगेदर के है। आई विल सब्ट्रैक्ट इट विथ 360। क्यों? आई वॉन्ट नेवर टुगेदर। ये तो टुगेदर है, देखो साथ में, ओफो ये तो टुगेदर है साथ में, दिख रहा है, मेरे को नेवर टुगेदर चाहिए। तो 360 माइनस 120 वो मेरे को दे देगा नेवर टुगेदर। सो देयरफॉर 360 माइनस 120 इज नथिंग बट 240, एंड दैट इज व्हाट माय आंसर इज, एंड दैट इज व्हाट माय आंसर इज। सो नेवर टुगेदर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। टोटल वाज 360 ways, and so I will write down this as 360 minus, let me just write down a bit above of this ताकि मेरे को नीचे फाइनल टोटल लिखना पड़े, minus this 120 always together का, and that
indeed will give me the final answer, which is 240 ways. Okay, 240 ways. And that is how you calculate never together. It's not really that hard if you think of it. If you think of it properly, it's not really that hard. You just have to think it exactly and precisely. Okay, so there you go. Now we'll just move on with the next question. Oh, but before moving on, I have something for you guys to do on your own. That is the question number 23 is the homework for you guys. Okay, now it is one of the very basics question that we have to do. So वो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ. This you have to permute these two. You have to find the number of possible permutations for these two. What do you say? Words. One word is mathematics and one word is commerce. Now let me just give you the hint. In commerce, M repeat हो रहा है, E repeat हो रहा है और C repeat हो रहा है. जितने बार भी repeat हो रहा होगा उतने बार उनका factorial से divide कर दो. So not just only 2, but यहाँ पे तीन चीजें रिपीट हो रही है. तो यहाँ पे P Q R आ गया. P समझो C रिपीट करने को डिनोट करता है, M समझो Q और E समझो R को. जितने बार भी वो रिपीट हो रहे उसका फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. यू विल गेट द आंसर. सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो. सो नाउ आई डोंट हैव टू टेक इट बिकॉज दिस इज होमवर्क. द डब्बा मीन्स होमवर्क. ओके, let's just move on with the second example. 22nd. Let there be 3 red, 2 yellow, 2 green signal flags. Okay, how many different signals are possible? देखो यहाँ पे 3 रेड आ गए, 2 येलो और 2 ग्रीन. रिपीटेशन हो रहा है अब, ठीक है ना, रिपीटेशन हो रहा है. If we wish to make signals, not singles. if we wish to make signals by arranging all of them vertically on staff. सिग्नल्स अपने को बताना है कितने डिफरेंट पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं अगर मैं उनको वर्टिकली अरेंज करके रखूं तो. ओके, सो इट्स रियली सिंपल नाउ दैट कितना आगे गया. यस, सो नाउ मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं है अब. लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस. ओके, नाउ आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेसेस. सो what do we have? We have 3 red. 3 red. Okay, is it too light? No, it is not. Okay, 3 red. Now you will see properly. 3 red. Then 2 yellow. 2 yellow है ना? हाँ, 2 yellow and 2 green. Okay, अब मेरे को उसको मेरे को इसको अरेंज करना है बस. एक सिंगल कितने वर्टिकली ऑन ए स्टाफ मेरे को वर्टिकली इसको अरेंज करना है फ्लैग्स को. हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? सो इन टोटल आई हैव 3 + 2 5 + 2 7 flags. In total I have 7 flags, and these 7 flags are going to get permuted on a vertical staff, vertically on a staff. So अब 7 flag है तो it's simple, उसकी permutation कितनी होगी? So it's simple, 7 factorial है ना. Since there are 7 flags, then the permutation among themselves is 7 factorial, but there are 3 flags which are going to repeat themselves, so 3 factorial into there are 2 orange flags that are going to repeat themselves, which makes their permutation really hopeless. And then comes the third green flag, which is again repeating twice, so the permutation of that useless thing is going to get divided. Now I have exact answer that I wished I should have with me, and that is what? 7 factorial divided by, let me just do it now. Okay, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. Okay, and excuse me, yeah, and this 3 factorial now will get cancelled out this with this 3 factorial. That is why I wrote that. And 2 factorial is nothing but 2, and this 2 factorial is nothing but 2. Okay, now green, it was green. Okay, now these three gets cancelled out. This
2 2 and this 4 gets cancelled out. So what I'm left with is 7 into 6 into 5, and that is my answer. What is my answer now? 30 into 70, 210, 210. Yes. So देखा यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग फैक्टोरियल से डिवाइड किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रेड रिपीट हो रहा था, 2 येलो रिपीट हो रहा था, 2 ग्रीन रिपीट हो रहा था. एंड दैट इज वाई आई हैव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स. जितने भी बार वो रिपीट हो रहे थे उसके फैक्टोरियल से मैंने उसको डिवाइड कर दिया. दैट इज इट. That is how you solve the problem when the things are repeating itself and you are calculating the number of different ways. So let's just move on now with the next example, that is the 24th example. How many even numbers of 4 digits can be formed with digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6? No digits being used more than once. Okay. अब यहाँ पे इन्होंने एक रियल हिंट दे रखा है अपने को, एंड दैट इज व्हाट कि एक भी डिजिट एक से ज्यादा बार यूज नहीं हो रहा है. नाउ जब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक से मोर देन वंस रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है. और जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है नंबर का, तब अपन उसको डिवाइड नहीं करेंगे. ओके, इट्स दैट सिंपल. नहीं तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार कि तुम उसको डिवाइड करते बैठोगे. जब तक कि तुमको कहा नहीं जाता है कि वो डिवाइड नहीं हो रहे, मोर देन वंस ऑकर नहीं हो रहे, तब तक कि तुम उसको डिवाइड नहीं करोगे. अगर मोर देन वंस ऑकर हो रहे हैं तब तुम उसको डिवाइड करोगे. सो लाइक जस्ट इन केस यहाँ पे जैसे कि अपना ये देखो, उन्होंने बोला नॉट ऑकरिंग मोर देन वंस इन ईच नंबर. सो ये भी जो अगला भी केस है उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि नॉट ऑकरिंग मोर देन वंस. एक्सप्लिसिटली वो मेंशन करेंगे कि ऑकर एक से ज्यादा बार हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड इन सच केस यू विल हैव टू यूज द प्रॉपर मेथड्स. So now let's just move on. Okay, so how many digits did I have with me? 0 से लेके 6 तक के. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, now what I have to do is 4 digit number मेरे को फॉर्म करना है. So let me just draw this kind of table now. Okay, yes. ये एक स्पेस, यहाँ पे ये 2 और ये 3. अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो सबसे बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही मेरा 0 ये पोजीशन पे आ गया तो इट विल नेवर फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर. क्यों? क्योंकि सामने अगर मैं 0 1 लिखता हूं, इसका मतलब ये 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट. एग्जैक्टली. मेरे को अगर 2 डिजिट नंबर चाहिए तो आई हैव टू गेट रीड ऑफ दिस 0 फ्रॉम द थाउजेंड्स प्लेस, है ना. तो पहली केस तो क्या हो जाएगी मेरी कि भाई 0 आ ही नहीं रहा है. कहां पे? लेट्स से थाउजेंड्स प्लेस पे. मेरे को इसको TH लिखने दो. ये आ जाएगा मेरा 100, ये आ जाएगा मेरा 10 और ये आ जाएगा मेरा यूनिट्स. Let me just erase this out. Okay. And more specifically, उन्होंने अपने को ये बोला है कि the digits should be even. You know how many even numbers of 4 digit? Even number चाहिए मेरे को. अब एक बात तो पक्का है कि पहला केस मेरा ये हो जाएगा. मेरा केस पहला तो ये हो जाएगा, सीधी बात है कि 0 तो कभी पहले केस पे आएगा ही नहीं. लेकिन इवन नंबर फॉर्म करने के लिए 0 हमेशा यहां पे फिक्स कर दूं मैं तो चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल चलेगा. क्योंकि 5000, 1000, 2000, 3000, 1 जो भी लो आप, 1150, 220000 या जो भी लो आप, 0 एंड में रहा तो इट ऑलवेज फॉर्म्स इवन नंबर बिकॉज वो 2 से डिविजिबल हो जाता है. सो देन सिंस अमॉन्ग दिस 7 नंबर्स, ये 7 नंबर्स है मेरे पास में, ठीक है ना, कंसिडरिंग 0 और ये 7 नंबर्स है मेरे पास में, 7 आउट ऑफ विच मेरी एक पोजीशन तो फिक्स हो गई. सॉरी 7 नहीं, हाँ 7 डिजिट से, बरोबर, हाँ 7 डिजिट से, और उसमें से मेरी एक पोजीशन तो फिक्स हो गई है. एग्जैक्टली, एक पोजीशन फिक्स हो गई. अब 7 में से कितने नंबर बचे भाई? 7 में से नंबर बचे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए कितनी पोजीशंस है? इससे 3 पोजीशन है. तो पहले 6 में से कोई भी एक आएगा यहाँ पे, तो उनकी मतलब 6 नंबर से 1000 प्लेस पे आने के लिए.
लेकिन जैसे ही एक कोई आ जाएगा वैसे 5 बचेंगे, और जैसे उसमें से कोई एक आ जाएगा वैसे 4 बचेंगे. दैट्स इट, एंड वी आर डन. सो लाइक पहली केस में व्हेन आई जस्ट राइट इट डाउन, व्हेन 0 इज एट यूनिट्स यूनिट्स प्लेस. मैंने एक्चुअली पहले कंसिडर कर रहे थे अपन यहां पे नहीं आएगा, उसको बाद में कंसिडर करते हैं, क्योंकि दिस इज सिंपल ना. यूनिट्स प्लेस पे अगर मैं उसकी पोजीशन फिक्स कर दूं तो वो यहां पे तो कभी नहीं आएगा, और जब वो यहां पे नहीं आएगा तो इट इज ओके फॉर मी, क्योंकि उसकी पोजीशन तो फिक्स है. इट्स लाइक कि that example will not fit. Okay, so when 0 is at units place, the number of possible 4-digit numbers is, therefore the total number of different ways is equal to 6 into 5 into, okay, different color, 6 into 5 into 4, and that is, my friend, equal to 120 ways. Now some might go by formula also. कैसे formula से? इसको आप लिख सकते हो 6p3, इतने पार्ट को, ठीक है, exactly इतने पार्ट को आप लिख सकते हो 6p3, because there is only 3 positions, there are only 3 positions which are going to get filled by the 6 numbers that you had with you. Okay, and so there is possibility of 6 factorial divided by 3 factorial, which is nothing but equal to 120 ways. Okay, so they are one and the same thing. So if you feel like you have to go with this method, make yourself at home, ऐसा बोलते हैं वो, be comfortable with that method also. Now, but we are not done yet, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि 0 अगर यूनिट्स प्लेस पे आ गया तो वो इवन नंबर फॉर्म करेगा. यूनिट्स प्लेस पे आने के लिए when 2, 4, 6 are at units place, this also will form a even number. But अब यहां पे मेन प्रॉब्लम आ चुका है, and that is what, let me just bring it down now. I'll redraw the table now, थोड़ा बड़ा भी. 1, the arrow came along with it. 1, 2 and 3. So there we are with 4-digit number. Okay, now point is that कि यहाँ पे either 2 can come, 4 can come और 6 can come. either कोई भी एक आ जाएगा, और जिसमें से भी कोई एक आ जाएगा वो यहाँ पे बचे हुए 2, ये 3 पोजीशन ले सकते हैं. बट द थिंग इज दैट 0 कैन नॉट कम ओवर हियर. 0 के लिए ये पोजीशन कभी नहीं है, क्योंकि वंस द 0 कम ऑन दिस पोजीशन वो 4-digit नंबर होने ही नहीं देगा. सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? इफ out of these 3, 1 is selected at units place, 1 is been selected at units place, and 0 is going to get the position either here or here. तो कितने नंबर बचे भाई मेरे पास में? सर लेट्स से कि 2 सिलेक्ट हो गया यहाँ पे. चलो 2 सिलेक्ट हो गया. 0 to 6 में, 0 से लेके 6 में 2 गया, तो बच्चे कितने मेरे पास में? 7 - 1, क्योंकि 2 इसमें से गया, मेरे पास में बच्चे 6. अगेन ये 6 डिजिट में 0 भी इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे पोजीशन ले सकता है. 0 यहाँ पे आ सकता है क्या? नो, 0 कैन नॉट कम. तो मैं क्या करूंगा? अगेन ये पोजीशन के लिए मैं इसमें से 6 में से -1 कर दूंगा. दैट विल गिव मी 5. ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को, जो यहाँ पे कभी पोजीशन ले ही नहीं सकता. तो नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर टू टेक पोजीशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस? दैट आर ओनली 5. एंड नाउ मेरे को बताओ हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर जिसकी वजह से, अब देखो आपके पास में कोई 5 में से एक यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली अब आपके पास में बचेंगे कितने? 4.
क्यों? क्योंकि 2 तो यहां पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 2 बोलो और 4 बोलो और 6 बोलो, 3 में से कोई भी एक, ठीक है ना, 3 में से कोई भी एक, तो वो यहां पे फिक्स हो जाएगा। तो और यहां पे कोई भी एक फिक्स हो जाएगा, मतलब 2 नंबर्स ऑलरेडी तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे 2 पोजीशन में से। कितने में से? कितने में से? 7 में से। ये देखो 2 तो माइनस हो गए, बचे 5। अब 5 में से, अब वापस 5 में से तुम्हारे पास में बचेंगे कितने? 2 प्लेसेस। एग्जैक्टली अब तुम्हारे पास में 5 में से बचेंगे कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। तो लेट्स से पहले वाले के लिए तुम्हारे पास में है 5 वेज और दूसरे के लिए है 4 वेज, दूसरे के लिए है 4 वेज, एंड देन यू हैव। अब ये 5 फैक्टोरियल कंसिडर करोगे क्या तुम इसको यहां पे बेटा? यस सर, गलत, यहां पे 5 फैक्टोरियल आ ही नहीं सकता कभी। क्यों सर? जैसे यहां पे 2, 4 और 6 था, सो ये क्या कर लेते हैं? केसेस फॉर्म करते हैं ना। केस 1, इसमें सब केस आ गई। केस ए अगर 2 यूनिट्स प्लेस पे आएगा तो क्या? केस बी अगर 4 यूनिट्स प्लेस पे आएगा तो क्या? केस सी अगर 6 यूनिट प्लेस पे आएगा तो क्या? इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 बार अलग अलग परम्यूटेशन मिलेगी। और जब कभी भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली परम्यूटेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है मेरे पास में अवेलेबल, इफ यू फील लाइक लेट मी जस्ट शो यू द एग्जांपल। ये देखो, ये वो एग्जांपल था जिसमें अपन ने क्या किए थे? 4 अलग अलग केसेस फॉर्म किए थे। 1 2 3 4 1 2 3 4। एक तो तुम 4 बार ऐड करके करो या तो फिर डायरेक्टली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, डिपेंड्स अपॉन यू। सेम गोज ओवर हियर। यहां पे ये 3 केसेस आ गए तो ये 3 नंबर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे यहां पे 3 नंबर आ गए थे, यहां पे 5 नंबर कौन से थे भाई? यहां पे था 1, यहां पे था 2 3 4 में से कोई भी समझो, 2 4 6 में से कोई भी, देन 3 देन 5। तो टोटली कितने नंबर बचे तुम्हारे पास में? 1 2 3 4 5 6। लेकिन 6 में से कोई तो एक नंबर यहां पे फिक्स हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में लेट्स से यहां पे तुम्हारा 2 फिक्स हो चुका है, यहां पे तुम्हारा 2 फिक्स हो चुका है। सो यू हैव 4 एंड 6। कितने नंबर है तुम्हारे पास में? इनमें से कितने? पांचों के पांचों आएंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा यहां पे। इन 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। तो इसके कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि दैट विल अगेन फॉर्म 5 केसेस। केस 1 यहां पे 1 आ गया तो क्या? केस 2 यहां पे 2 आ गया तो क्या? केस 3 यहां पे 5 आ गया तो क्या? केस 4 वहां पे 6 आ गया तो क्या? एंड लास्टली केस कौन सा बचा? 1 2 3 4। क्योंकि इधर जो भी सिलेक्ट होगा वो यहां पे नहीं आएगा। एग्जैक्टली वो यहां पे नहीं आएगा। सॉरी, आई डिड फॉरगॉट 3। 1 2 3 5 6। लेट्स से 4 सिलेक्ट हो गया तो कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5। सो इसलिए यहां पे ये 5 फैक्टोरियल नहीं रहेगा कभी। दैट इज ओनली 5 विच इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? विथ व्हाट? एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? 5p2 आएगा ना, 5p2 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। हाँ बराबर था, सॉरी। तो यहां पे कितना है? 5 और यहां पे कितना है? 4। एंड दस केस 2 में मेरे को आंसर मिलेगा 5 into 20 into 3 which is all equal to 300। समझे क्या? इट्स वेरी रियलिस्टिक एग्जाम्पल है ये बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। यहां पे मैं 3 लिख देता हूं। यहां पे 5 में से कोई एक नंबर आएगा, यहां पे 5 में से कोई एक आएगा। ओके, फिक्स। यहां पे बचे हुए 5 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, यहां पे अब 5 में से कोई तो एक यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, तो बचे हुए 4 यहां पे रहेंगे जो यहां पे आ सकते हैं। लेकिन अपना काम अभी तक यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अपन ने तो 2 केस ड्रॉ करिए। क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स आर देयर? कितने हैं अपने पास में? एक तो 120 तरीके हैं, या 300 तरीके हैं। दस देयरफॉर एक तो ये नहीं तो ये, आइदर और। टोटल नंबर ऑफ different ways is equal to 120 plus 300, and that is going to give me, well,
420 ways। और ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, ना कि ये और ना कि ये। भाई इन दोनों में से कौन सा तो एक आएगा ना, तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जब केसेस आने लग जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑकर होने लगता है। सो दैट इज हाउ यू डू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। Next comes up, the 7 candidates are to take examination, 2 in mathematics. Well, this is very simple. 2 in mathematics, the remaining in different subjects, in how many ways can they be seated in a row so that no two examinees may not sit together या never sit together? That doesn't make any sense. इतने बार तुम कर चुके हो, 7 candidates है are to take examination, 2 in mathematics, the remaining in different subject. ओके, द रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अब तुमको बस इतना बताना है कि कितने तरीके हैं जिसमें दो एग्जामी कभी भी मैथमेटिक्स के लिए एक साथ नहीं बैठेंगे। 7 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे रहे, 2 इन मैथमेटिक्स और बचे हुए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। डिफरेंट सब्जेक्ट में वो साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जब बात आती है तब दे कैन नॉट सिट टुगेदर। सो पहली बात तो ये है कि देयर आर 7 स्टूडेंट। अब नॉट सिट टुगेदर हो गया तो क्या आएगा अपना, नेवर इज इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। एग्जैक्टली। सो अब नेवर टोटल में क्या आ जाएगा भाई, 7 स्टूडेंट्स थे तो ये मेरा आ गया 7 फैक्टोरियल। सिंपल इनफ। अब तो ये तो तुम तो मतलब तुमने तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इसमें, तो है ना। टोटल तो 7 फैक्टोरियल ही रहेगा क्योंकि देयर आर 7 कैंडिडेट्स ओनली। नाउ अब क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए मैं टुगेदर साथ में ले रहा हूं तो ये दो स्टूडेंट्स को मैं एक कंसिडर करूंगा। एग्जैक्टली। और जब मैं वो 2 स्टूडेंट्स को एक कंसिडर करूंगा देन आई विल हैव, ये मेरे पास में 3 4 5 6 7 ब्लैंक्स थे। अब उसमें से 2 तो स्टूडेंट एक हो गए, बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 मैथमेटिक्स के तो एक कंसिडर किए जाएंगे। 7 में से 2 जानने के बाद में वो 2 को एक मिला दिया अपन ने, एक बना दिया तो 7 में से अभी 6 बचे अब, और मेरे पास में मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल वेज। लेकिन क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे में डिफरेंट है तो उनकी अलग अलग परम्यूटेशन आएगी। और क्या होती है उनकी परम्यूटेशन, 2 फैक्टोरियल, और इसका मैं ले रहा हूं सब्ट्रैक्शन, तो लेट मी राइट डाउन 2 फैक्टोरियल ओवर हियर, 2 फैक्टोरियल इनटू, exactly, and that is what will give me the answer. Well, it's now the calculation part that you can do. Okay, so do it by your own, fill the box. Okay, so that is simple. इतना सिंपल है ये, when you know that what you have to do, तुम्हारे पास में सब कुछ है करने को। सी 7 स्पेसेस थी, 7 में से अब 2 तो साथ में नहीं आने वाले, तो 2 साथ में आ गए, मतलब तुम ऐसा कंसिडर करोगे सर 2 तो चले गए ना, तो बेटा जब 2 चले गए तो वो 2 मिलके एक बन गए। तो जब 7 - 2 कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास में तुम बोलोगे सर हमारे पास में तो 5 बचना चाहिए था, लेकिन वो 2 जाने के बाद में एक बनकर आ रहे वापस, एंड दैट इज व्हाई यू हैव नाउ 6 students which are going to get filled in this 6 position, 1 2 3 4 5 6। ऐसा होता है वो, इसको हटा देंगे, इसको नहीं कुछ, ये नहीं कुछ नहीं काम करना। एंड दस ये 6 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, खैर ये तो तुमको मालूम ही है कि 2 स्टूडेंट की अपनी खुद की परम्यूटेशन होती है, एंड दैट इज हाउ यू डू इट। सो यस, दैट इज what the example was. Now the last question of today's session is find the number of numbers less than 1000. okay, इतने numbers बताने अपने को 1000 से less कि divisible by 5 है, which can be formed with the digits, which can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 digit है total, each digit not occurring more than once in each number. So let me just create some space. Okay, now since देखो अब there are so many different cases, अब देखो since 5 से divisible हो रहा है वो और 5 से divisible, ठीक है, and 5 से divisible हो रहा है, numbers are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9,
दिस मेनी नंबर्स आर देयर। नाउ ये तो मेरे लिए क्लियर है कि 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इन दी एंड मतलब, और कितने डिजिट नंबर है बोला उन्होंने, देखो 1000 से लेस, 1000 से लेस, पहली बात तो नंबर बताओ कितने, 1000 से लेस बोला है, x लेस देन 1000 मतलब x ग्रेटर देन 1000 हो गया, आउट, x लेस देन 1000, हाँ है ना, हाँ। सो 1000 से छोटे कितने नंबर है, जितने भी नंबर रहेंगे उनके डिजिट्स कितने रहेंगे, 3 डिजिट नंबर रहेंगे वो बॉस, वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर रहेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट नंबर है, तो मेरे पास में जो भी डिजिट फॉर्म होगा मेरा 5 से डिविजिबल वो 3 डिजिट होंगे, और सबसे पहला नंबर जो 1000 के करीब है और जो 5 से डिविजिबल होगा दैट इज व्हाट, 995, बिकॉज दैट इज व्हाट डिविजिबल विथ 5 इज, एग्जैक्टली। सो 995 इज द लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब ये देखो, मैंने जैसे 995 किस बेसिस पे बोला मैंने, क्योंकि इट हैज 5 इन देयर, एंड ऑल्सो 990 is divisible by 5, exactly. So thus I can say that if in the last position, पहला केस मेरा, ठीक है, if in last position, okay, if in last, अच्छा, okay, पहली केस नहीं फिलहाल, if in last position if there is 5 or 0 then the number are divisible, और यहां पे फिर कितने पॉसिबल नंबर्स आएंगे, देखो 5 और 0 अगर यहाँ पे आ गए तो ये और इसमें से एक को चल जाएगा, यहाँ पे इंटू 2, मतलब ये 2 तरीके हो गए इनके, ठीक है। अब क्योंकि एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे तो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा और बचेंगे 2 यहाँ पे, अगर समझो मेरा फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पे फिक्स नहीं होता और 5 यहाँ पे फिक्स हो जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0 यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही 0 यहाँ पे आ जाएगा वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। पर क्या मेरे को 2 डिजिट नंबर चलेगा, यस मेरे को चलेगा, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि वहां पे 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, 2 डिजिट नंबर ही चाहिए या 1 डिजिट नंबर ही चाहिए। सो अब यहां पे मेरे केसेस अब बदल जाएंगे, कैसे, देखो पहला केस तो ये, सिट टाइट, रिलैक्स एंड सी, पहला केस तो ये कि वो सिंगल डिजिट नंबर है, क्योंकि इट इज पॉसिबल, एग्जैक्टली। 5 डिविजिबल होता है क्या 5 से, यस। 0 डिविजिबल होता है क्या 5 से, वेल यू वोंट गेट द आंसर एनीथिंग, है ना। सो एनीथिंग मतलब सिंगल डिजिट नंबर अगर रहेगा तुम्हारा, इफ द नंबर इज सिंगल डिजिट, यू नो सिंगल डिजिट, बिकॉज सिंगल डिजिट नंबर इज लेस देन 1000, यस इट इज लेस देन इट इज वैलिड नंबर, एंड इज इट डिविजिबल बाय 5, हाँ एक ही नंबर है मेरे पास में जो 5 से डिविजिबल होता है, एंड दैट नंबर इज 5 itself. That number is 5 itself. So thus I can say that there is only one way. Okay, let me just draw the line. There is only one way. Case 2. If डिजिट्स आर 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर हो गया वो, नाउ द 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, देन व्हाट, यहाँ पे 2 डैश आ गए। अब 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे कभी 0 आ सकता है क्या, नहीं, जैसे ही वो 0 आएगा वो 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा उसको। सो 0 कैन नेवर बी ओवर देयर, एग्जैक्टली, एंड सिंस 0 यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली 0 यहाँ पे आ जाएगा 10th प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे, तो मेरे पास में पॉसिबल नंबर कितने हैं बताओ तो, 10 नंबर थे, 10 में से ये एक पोजीशन चली गई, यहाँ पे 9 नंबर्स आ जाएंगे, 9 डिफरेंट वेज आर देयर, और इसकी अलग खुद की अलग परम्यूटेशन कितनी होगी 1। सो 9 डिफरेंट वेज आर देयर, जिसमें से मैं यहाँ पे मेरा खुद का परम्यूटेशन कर सकता हूँ, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आ गया मेरा 9 वेज, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 वेज, ये आ गया मेरा केस 2, ओके। एंड नाउ अब अज्यूम करो, अब केस 3 कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ओके, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन लेट मी जस्ट टेक इट बिट अप ताकि तुमको यहाँ पे मेरे को जगह रहे। 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 10th प्लेस पे कभी 0 ऑकर ही नहीं होता है, मतलब 10th प्लेस पे 0 को हमने रिजेक्ट कर रखा है, यहाँ पे फिक्स कर रखा था
कितने बार फिक्स करके रखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना हर बार फिक्स करके रख सकते। सो यहाँ पे अपने को उसको रिजेक्ट करना है, मतलब क्या कि वो यहाँ पे कभी आ ही नहीं सकता। सो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास में जिसमें वो यहाँ पे कभी आ ही नहीं सकता। सो आई विल एनकरेज यू गाइज टू नाउ पॉज द वीडियो। अब यहाँ पे तुम पॉज करो वीडियो को और अब यहाँ पे तुम कोशिश करो खुद से करने की। यहाँ पे प्लीज कोशिश करो खुद से करने की और ट्राई करो कि तुमको यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरा डिजिट 5 से एंड हो रहा है एग्जैक्टली। अब क्योंकि मेरा 5 से एंड हो रहा है डिजिट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 0 to 9 आएगा एक्सेप्ट 5, 0 to 9 एक्सेप्ट 5, बट 0 कैनॉट बी कम, 0 कैनॉट बी सिलेक्टेड ओवर हियर। सो ऑलरेडी 10 में से 9 नंबर बचे थे। अब 9 में से क्योंकि 0 भी चले गए तो देयर इज ओनली 8 वेज, देयर इज ओनली 8 वेज in which I can arrange this, and thus giving me 8 ways. Exactly. मेरे को कितने दे रहा है? 8 ways दे रहा है इसको सॉल्व करने के। अब द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट केस नंबर 3 डिजिट। देखो पहला तो सिंगल डिजिट था तो एक ही तरीका रहेगा और एक ही नंबर है। 2 डिजिट रहेगा तो 2 तरीके, क्योंकि 0 यूनिट्स प्लेस पर फिक्स है तब तक के तो भाई ठीक है। जैसे वो 0 यूनिट्स प्लेस से हट गया, जैसे 0 यूनिट्स प्लेस पे से हट गया, देन द रियल कंफ्यूजन बिगिंस, प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो अपन उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट कर देंगे मतलब क्या, टोटल नंबर में से हटाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबिलिटी आएगी वो 2 डिजिट नंबर की। तो टोटल नंबर्स में से हटा देंगे और 5 को फिक्स कर देंगे तो मेरे पास में 8 ही नंबर बचेंगे। सो देयर आर 8 वेज। नाउ कम्स द 3 डिजिट नंबर। अब इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। 5 और 0 से डिविजिबल होगा पहला तो नंबर, तो एक तो 5 आएगा नहीं तो 0 आएगा। सो लेट से मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब उसके 2 तरीके हो गए। अब क्योंकि एक तो यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे कभी 0 नहीं आ सकता। अगेन यहाँ पे कभी 0 नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं पहले 0 की पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। दैट इज व्हाट स्केयर्स मी अलॉट। मेरे को आता नहीं है फिलहाल, तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 की पोजीशन फिक्स कर देता हूँ पहले यूनिट्स प्लेस में, जैसा मैंने ठीक यहाँ पे किया केस 2 में। नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फॉर मी? 10 नंबर थे, 10 में से एक तो फिक्स हो गया, 9 बचे। 9 यहाँ पे आने के लिए देयर आर 9 डिफरेंट नंबर्स दैट कैन टेक द पोजीशन फर्स्ट, एंड सिंस उसमें से कोई एक पोजीशन ले लेगा तो देयर आर 8 नंबर्स व्हिच कैन टेक द नेक्स्ट पोजीशन, So there are 9 into 8 into 1. ये 0 मतलब उसका एक खुद का अपना तरीका हो जाएगा. So 9 into 8 ways are there. So 9 into 8 कितने हो गए? Just to be sure, इसलिए मैंने कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट कर लिया. It's not like कि मेरे को टेबल नहीं याद है. It's like I'm just getting sure कि like anyways. Okay. Now case 4. Case 4. 3 digit number ये. 3 digit number ये again. Let me just write down properly. ऐसे case 4. 3 digit. And now, yes. And now the last final step of our question. उसके बाद में बचा एक चीज, क्या? ये केसेस का एडिशन. क्योंकि एक तो ये तरीका, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये. हाउ मेनी वेज आर देयर, है ना? एंड नाउ कम्स द लास्ट इज दैट कि यूनिट्स प्लेस पे 0 यूनिट्स बोल रहा हूं, यूनिट्स प्लेस पे मेरा 5 आ जाएगा. यूनिट्स प्लेस पे मेरा 5 आ जाएगा. कहां गया मेरा रेड? मेरा 5 आ जाएगा. लेकिन यहां पे कभी 0 नहीं आ सकता, तो आई हैव टू रिजेक्ट द 0 फ्रॉम दिस. अब 5 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है. सो ये नंबर है ऊपर अपने पास में, इफ यू विल एबल टू वॉच. अब तो और भी नहीं देख सकते तुम. नो यू कैन सी इट. यस, और पूरा स्क्रीन भी दिख रहा है. यस. सो सिंस देयर आर 10 नंबर्स, देयर आर 10 डिजिट, जिसमें से एक की पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, एंड एक की पोजीशन फिक्स होने की वजह से नाउ मैं 0 को एलिमिनेट कर दूंगा. मैं 0 को जैसे एलिमिनेट कर दूंगा तो
ऑलरेडी 10 में से एक गया 9, और 9 में से मैंने 0 को भी हटा दिया, बचे 8. So 8 ways are there, 8 different ways are there to select any number from this position. And now जैसे ही मैंने इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, so how many different numbers are there for me to select over here? Just like previous question, ये यहाँ पे अपन ने 0 को एलिमिनेट किया था एग्जैक्टली, फिर भी मेरे पास में उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स बचे थे एग्जैक्टली. सिमिलरली भाई 10 नंबर है मेरे पास में, 10 नंबर, वो 10 नंबर में से एक नंबर तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है 5, बचे 9 में से 0 आ नहीं सकता, बचे 8 जो यहाँ पे आएंगे. लेकिन क्या यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आने के कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं, और क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था तब 8 तरीके थे, यहाँ पे 0 आ जाएगा. 9 तरीके, वही मैं बोल रहा था, 9 तरीके हो जाएंगे एग्जैक्टली, 9 तरीके. एंड दैट विल गिव मी द आंसर विच इज अगेन 72 ways. एंड दस माई फाइनल आंसर. अब कोई केस बचा है क्या मेरे पास में? जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे. अब कोई मेरे पास में केस बचा है क्या? देर इज नो एज सच रिमेनिंग केसेस नाउ विथ मी, कि मतलब 3 डिजिट नंबर थे, सारी तो मैंने पॉसिबल केसेस ले ली है, सारी पॉसिबल केसेस मैंने अज्यूम कर लिए. सो पहला आएगा मेरा 1, केस 1. लेट मी जस्ट टेक नाउ डिफरेंट कलर ताकि मैं अभी कंक्लूड करूं सेशन को यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल को भी देखो. आई एम हैविंग पहले इसमें नंबर 1 वेज प्लस, then I am having 9 ways plus, then I am having 8 ways. Okay. Oopsie. यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 10 में से एक गया 9, 8. हाँ. Then I am having again 72 ways, and lastly again I am having 72 ways, and this in turn will give me how many ways? 72 plus 72 plus 8 plus 9 plus 1, 162. Exactly. Let me just calculate it again. 9 plus 1 plus 8 plus 7. Okay, 18 plus 72 plus 72. 162. But अब यहाँ पे मेरा एक लास्ट पॉइंट रह गया, एक जस्ट लास्ट पॉइंट जहां पे अब अपन कंक्लूड करेंगे लास्ट चीज, लास्टली, एंड दैट इज व्हाट. देखो, जब नंबर 5 से एंड हो रहा था मेरा, है ना, एक कॉमन मिस्टेक जो हो जाता है, लाइक मतलब मिस्टेक नहीं होता है वो, बट स्टिल यू नो, जब यहां पे तुम 5 से कर रहे थे, कॉमन मिस्टेक है वो, मैंने वो होने दिया यहां पे. यू ऑल अग्रीड, जिन्होंने अग्री किया होगा, जिनको नोटिस हुआ होगा तो ठीक है. द थिंग इज दैट यहाँ पे वी कैन नॉट टेक 9. अरे ऑलरेडी 5 सिलेक्ट हो चुका है, 0 यहाँ पे आ सकता है, 0 को यहाँ पे एलिमिनेट किया था, तो जब एलिमिनेट किया था तब 8 थे ऑलरेडी, पहले तो 1 माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे भी 8 ही रहेंगे. जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे. ये देखो, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 ही था, यहाँ पे 9 नहीं आ सकता. जस्ट सो कि मैंने अरे हाँ 9 आ सकता है ऐसा बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे 9 आ सकता है. देयर कैन नेवर बी 9. 9 कैसे आएगा? ओके, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है. देयर कैन नेवर बी 9. देयर कैन ओनली बी 8 into 8, and that will give you guys 64 ways. So एक स्लाइटली मिस्टेक की मैंने जानबूझ के, so that you can अब ऐसा मत समझना कि लाइक सर आपको आ नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि you should think about it कि ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है.
यू नो इट्स जस्ट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बात था वो यहाँ पे। 10 डिजिट था, माइनस 1 कर दिया क्योंकि 5 सिलेक्ट हो गया, आई हैव 9, लेकिन 0 को माइनस कर दिया, लेकिन 1 डिजिट यानी 8 डिजिट्स बचे, 8 डिजिट्स यहाँ पे आएंगे। लेकिन जैसे 8 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब 8 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास में बचेंगे 7, लेकिन 0 तो ऐड हो जाएगा, बचेगा 8। मैंने यहां पे ऐड कर दिया, जबकि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था 1 पहले। ओके, एनीवेज, सो देयर यू गो, द फाइनल आंसर इज नाउ, द फाइनल आंसर इज 10, 18, 18 plus 72 will give you 90 plus 64, that is 154 ways. And now we are done with the permutation of like things and the examples. In next session we are going to cover up the further more topics of the permutation. This session has been quite a long session, so practice it properly. That's it from me guys. Thank you.